زبور 16 جو ہے یہ ایک پسندیدہ زبور ہے، اور اس زبور کے اندر بہت گہری باتیں، بھید کی باتیں داؤد نے بیان کی ہیں۔ لیکن اس زبور کی جو آخری آیت ہے، 11ویں آیت، خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ آمین۔ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے۔ کس کے حضور میں؟ خدا کے حضور میں کامل شادمانی ہے۔ خدا کے بغیر شادمانی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ تو آج جو بے خدا لوگ ہیں، جن کے پاس خدا نہیں ہے، جو خدا کو نہیں جانتے، وہ خوشی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اپنے انداز سے خوشی تلاش کر رہے ہیں، لیکن خوشی انہیں ملتی نہیں۔ کچھ لوگ یاروں دوستوں میں وقت گزار کے خوشی پانا چاہتے ہیں، ڈیوٹی سے آتے ہیں، آتے ساتھ ہی بائک کھڑی کرتے ہیں، سائیکل کھڑی کرتے ہیں، گاڑی کھڑی کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر دوستوں میں رات گئے تک بیٹھے رہتے ہیں، 11 بجے تک، 12-1 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں اس کے بعد اپنے گھر آ کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سیر و تفریح میں وقت گزار کے خوشی پانا چاہتے ہیں، لیکن داؤد نے خوشی کا جو تصور ہمیں دیا ہے، داؤد ایک ایسا آدمی تھا جس کے پاس سب کچھ بہتات سے تھا، بادشاہ تھا، وہ اس کے پاس دولت بھی تھی، اس کے پاس اختیار بھی تھا، اس کے پاس فوج بھی تھی، وہ کسی پر بھی حملہ کرتا، اور ایسا بادشاہ تھا کہ جس بھی قوم پر حملہ کرتا ضرور ہی فاتح ہوتا، وہ کسی کو شکست بآسانی دے سکتا تھا۔ لیکن داؤد کی ترقی کا راز یہی تھا، داؤد کی خوشی اور شادمانی کا راز یہ تھا کہ داؤد خدا کی حضوری میں رہتا تھا۔ اور جو بات میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اسی زبور کے اوپر چلیں، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت پڑھیں، یہ بھید کی بات ہے جو آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں 7ویں آیت میں کہتا ہے، میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ یہاں پر داؤد کیا کہتا ہے 8ویں آیت میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی کہ ہم خدا کو اپنی ہر ایک بات میں اپنے سامنے رکھیں۔ تو جو اس پریکٹس میں کامیاب ہوگا، ڈیلی اس واک میں چلے گا، خدا کی حضوری میں چلنا ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں خدا کی حضوری میں چلنا شروع کر دیں گے۔ آپ یہاں پر آئیں، آپ کو کیسا لگا؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ خدا کی قدرت یہاں پر ہے؟ جب آپ پرستش کر رہے تھے، میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، کچھ لوگ محو تھے، کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو خدا کی پرستش میں محو تھے، اور انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم اپنے دل کی پریشانیاں اور مصیبتیں خدا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ خدا کی حضوری ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل پاتے ہیں۔ خدا کے بغیر آپ کی زندگی کے مسائل، میری زندگی کے مسائل، ہماری زندگی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو داؤد نے پریکٹس کرنا شروع کی، کس چیز کی؟ خدا کی حضوری میں رہنے کی۔ یہ روز کی پریکٹس ہے جی۔ آپ نے دیکھنا ہے وہ کون سی باتیں ہیں جو مجھے خدا سے دور لے کر جاتی ہیں، ان کو کٹ کریں اپنی لائف سے، اور جو چیزیں آپ کو خدا کی حضوری میں لے کر آتی ہیں ان چیزوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو داؤد ایسا ہی کرتا تھا۔ داؤد جو تھا وہ خدا کی پریزنس کو بڑی ترجیح دیتا تھا، خدا کی حضوری کو بڑی ترجیح دیتا تھا۔ وہ کہتا ہے تو میرے دہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اور زبور 23 میں کہتا ہے، خواہ موت کی سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تو خدا کی موجودگی، خدا کا آپ کے ساتھ ہونا، اس بات کی ضمانت ہے کہ کوئی بھی آپ کو ہلا نہیں سکتا۔ آپ اپنی جگہ پر مضبوط، اٹل اور قائم رہیں گے۔ مصائب آئیں گے، ہو سکتا ہے بیماری آپ کو گھیر لے، لیکن بیماری آپ کو پریشان نہیں کر پائے گی، آپ ڈاواڈول نہیں ہوں گے۔ اگر خدا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تو آپ بیماری میں ہار جائیں گے، آپ ہمت ہار جائیں گے۔ ہم بہت سے بیماروں کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن بہت کم بیمار ایسے ہیں جن کو اس بات کا احساس ہے کہ خداوند اس بیماری میں بھی میرے ساتھ۔ زبور 103 میں یہ لکھا نا کہ وہ بستر بچھاتا ہے میرے لیے بیماری۔ تو جن لوگوں کو یہ احساس ہے ان کے چہرے کے اوپر ہمیں امید نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، چاہے بیماری کتنی بڑی ہے، خداوند میرے لیے بڑا معجزہ کرے گا۔ لیکن جس بندے کے پاس خدا نہیں ہے، اس کو خدا کی حضوری کے اندر رہنا نہیں آتا، وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس پر جب بیماری آتی ہے، ہم اسپتال میں ان کے لیے دعا کرنے جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی نا امید ہیں اور وہ مریض خود بھی نا امید ہے، کیونکہ خدا نہیں ان کے پاس۔ تو داؤد جو ہے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بات جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی حضوری میں رہو گے تو جنبش نہیں ہوگی، اور کامل شادمانی۔
ट्रू सेटिस्फैक्शन, ट्रू हैप्पीनेस खुदा की हुजूरी में है। मेरे अजीजों, आज हमें खुदा की हुजूरी में रहना इतना पसंद नहीं है, उसकी वजह से हम अपनी जिंदगियों में नाकामी की तरफ जा रहे हैं। 4 बातें आपके साथ शेयर करूंगा, ये सब जानते हैं इन बातों को। अमाल की किताब में वो 4 बातें दर्ज हैं। खुदा की हुजूरी में रहने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरह आप गाड़ी सीखते हैं तो आप सुबह सुबह गाड़ी को निकालते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, मोड़ काटते हैं कि अच्छे तरीके से मुझे मोड़ काटना आ जाए, ओवरटेक करना आ जाए, गाड़ी की स्पीड को बैलेंस करना आ जाए, गियर कैसे डालना है, रेस को कैसे कंट्रोल करना है, स्टीयरिंग को कैसे कंट्रोल करना है। जो बेटियां छोटी उम्र में जिनको माएं खाना पकाना सिखाती हैं वो प्रैक्टिस कराती हैं, छोटी छोटी चीजों से आगाज कराती हैं और फिर आहिस्ता 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 वो अच्छी कुक बन जाती हैं, अच्छा खाना पकाने लग जाती हैं। सफाई सुथराई का काम उन्हें सिखाया जाता है। जब सिलाई कढ़ाई का काम उन्हें सिखाया जाता है उसमें भी उन्हें तरबियत दी जाती है। तो दुनिया के तमाम काम जो हम सीखते हैं उसके लिए हमें प्रैक्टिस दरकार है। प्रैक्टिस जो है वो हमें परफेक्ट बनाती है। अगर हम कोई काम सीख लें और उसकी प्रैक्टिस ना करें तो फिर वो काम जल्द ही हमें भूल जाएगा। होता क्या है, हम चर्च में आते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि यार यहां पर तो खुदा की बड़ी बरकत है, लेकिन उसके बाद हम जाके उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उस हुजूरी के अंदर मुस्तकिल रहते नहीं। इसकी वजह से खुदा का कलाम थोड़े ही दिनों में हमारे जहन से काफूर हो जाता है, हम उसे भूल जाते हैं। तो जो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ये बड़ी मशहूर बातें हैं। मैंने क्यों इन बातों को चुना है, क्योंकि दाऊद ने जो बात ऊपर की कि मैं हमेशा खुदावंद को अपने सामने रखता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की हुजूरी में रहे तो आपको अपनी तरजीहात देखनी होंगी कि हम किन चीजों को अहमियत देते हैं। टीवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं या गीत गाना हमें अच्छा लगता है, कलाम पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है या गप्पे मारनी ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो जो चीज आप पसंद करते हैं आप उसी की प्रैक्टिस करें। कई लोग ड्रामे ही देखते रहते हैं और फिर वो ड्रामों की ही जुगतें लगाते हैं। आम गुफ्तगू में भी उनके ड्रामे ही छलक रहे होते हैं। साफ पता चल जाता है कि यह बंदा ड्रामे बहुत वेखता है, क्योंकि वो मुंह चो वही कुछ नहीं कर रहा होता जो कुछ उन्हें सुने होता। तो दाऊद जो है उसने अपने आप को मुनज़्ज़म किया है, उसने अपने आप को बैलेंस किया है कि मैं खुदा की आवाज सुनूं। याद रखें, जब दाऊद जंग करने के लिए गया था तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दाऊद ने खुदा से कहा कि मैं उतनी देर तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तू मुझे साइन न दे कि तू इस जंग में हमारे साथ है। देखें, खुदा की हुजूरी में रहते रहते उसे खुदा की आवाज की पहचान हो गई। आज लोग कहते हैं कि खुदा हमसे कैसे, आपसे कैसे बोलता है, खुदा ने आपसे कैसे बात की है। जब आप उसकी हुजूरी में बैठेंगे खुदा बहुत धीमी आवाज में बोलता है। आपको पता है कि एलिया जब उस पहाड़ के अंदर छुपा हुआ था तो कलाम में लिखा है कि आंधियां आई, तूफान आए, जलजला आया, आग आई, गोले आग के, और आग की सूरत में भी खुदा जाहिर हुआ। लेकिन उसको पता था ये सब कुछ है, लेकिन उतनी देर तक वो छुपा रहा। लिखा फिर एक हल्की सी आवाज है। उस हल्की सी आवाज के अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि उसने एलिया को बाहर निकाल लिया। एलिया बाहर आ गया, उन्होंने कहा भी आ जाओ, केड़ा मेरे सामने आएगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब खुदा मेरे साथ है। तो दाऊद भी बैठा हुआ था अपनी फौज को लेकर, तो खुदा ने उससे कहा कि जब तू अपने आगे पत्तों पर चलने की आवाज सुने तो समझ लेना कि मैं तेरे आगे जंग करने के लिए निकल। हालेलुया। तो जब खुदा उन पत्तों के ऊपर चल के गुजरा, खुदा का फरिश्ता खुदा, तो फिर कलाम में लिखा है कि दाऊद दलेर हो गया। उसने अपनी फौज को कहा तैयार हो जाओ भाई हमला करने के लिए, क्योंकि खुदावंद हमारे आगे है। हालेलुया। और फिर जब उन्होंने हमला किया तो कलाम में लिखा है कि दुश्मन को तह तह करके रख दिया, क्योंकि खुदा उनके साथ। खुदा की हुजूरी के अंदर रहना, खुदा की परस्तिश करना, ये एक ईमानदार की अहम जरूरत है, शदीद जरूरत है। गुज़िश्ता सालों में हमने खुदा की हुजूरी का तजर्बा इस तौर से नहीं किया जिस तौर से हमें करना चाहिए। खुदा की हुजूरी में रहने का मतलब मुकम्मल प्रोटेक्शन, मुकम्मल हिफाजत। लिखा है जिस तरह यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसी तरह खुदा अपने लोगों को घेरे रहता है। लेकिन किन लोगों को? जो उसकी हुजूरी में रहते हैं। शहर पनाह का मतलब क्या था? जो शहर पनाह के अंदर जाएगा, शहर पनाह एक ऐसे शहर थे, तमाम इसराइल के अंदर वो शहर मौजूद थे। बड़े सिटीज के अंदर एक छोटा सा इलाका होता था जिसको शहर पनाह कहा जाता। शहर पनाह का मतलब यह था अगर किसी शख्स से ना चाहते हुए कोई शख्स कत्ल हो जाए या उससे कोई ऐसी बड़ी बात हो जाए जिसे वो करना ना चाहता हो, लेकिन इरादतन तो ना करना चाहता हो, लेकिन उससे हो जाए वो, तो वो उस शहर पनाह के अंदर भाग जाए। उस शहर पनाह के अंदर जाकर वो सींगों को पकड़ ले, मज़बा के सींगों को पकड़ ले, तो जितनी देर तक वो शख्स उस शहर पनाह के अंदर रहेगा कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो उस प्रोटेक्शन के अंदर चला गया था। लेकिन अगर वो शख्स उस शहर पनाह से बाहर आ जाए तो इसका मतलब है कि उसको कोई भी शख्स पकड़ेगा, उसको मार भी सकता है, क्योंकि वो कत्ल करके आया। तो मैं और आप जब खुदा की हुजूरी में चले जाते हैं तो हम शहर पनाह के अंदर हैं, जहां पर खुदा हमारी हिफाजत करता है। दुश्मन हम पर अटैक तो करता है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि हम खुदा के हाथों में होते हैं, खुदा हमें संभालता है। 4 बातें
آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ خدا کی حضوری میں رہنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اعمال کی کتاب یہ ابتدائی کلیسیا کا پیٹرن ہے جس میں انہوں نے خداوند کی حضوری میں رہنے کا تجربہ کیا. یہ ایمانداروں کے لیے ان اسباق کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر ہم ترقی کریں تو ہمیں ان تمام چیزوں کو، ان پوائنٹس کو فالو کرنا ہوگا. پہلی چیز یہاں پر کیا لکھی ہے؟ اعمال 2 باب اور اس کی 41ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے پڑھوں گا. پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. ان لوگوں نے خدا کا کلام قبول کیا اور بپتسمہ لے لیا کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی ہے. جب انہوں نے کلام کو قبول کر لیا، بپتسمہ لے لیا، تو اس کے بعد وہ یہاں پر رکے نہیں رہ گئے. لیکن ہماری کلیسیاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ ہم خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں اور پھر ٹاٹا بائی بائی کر دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر برکت کوئی نہیں آتی، ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہماری زندگی کے اندر خدا کام نہیں کر پاتا، کیونکہ ہم اس نظام کے اندر، خدا کی حضوری کے اندر رہنا پسند نہیں کرتے، ہم چلے جاتے ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں انہوں نے پھر کیا کیا. اور اسی روز 3000 آدمیوں قریب ان میں مل گئے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے. پہلی بات، رسولوں سے تعلیم پانے. پولس رسول کو کرنے رسول اعظم، لیکن پولس رسول سے بھی بڑا ایک رسول ہے، وہ خدا کا پاک روح ہے. کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے در حقیقت وہی رسولوں کو برکت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے کہ وہ کلیسیاؤں کو قائم کریں. رسالت کی جو سب سے بڑی کنجی ہے وہ خود پاک روح ہے. تو پاک روح جو ہے وہ انوائنٹ کرتا ہے، یہ بڑا رسول ہے، یہ انوائنٹ کرتا ہے دوسرے زمینی رسولوں کو تاکہ وہ خدمت کریں جا. تو یہ رسولوں سے تعلیم پانے، اس کے اندر محض خادم سے تعلیم پانا نہیں ہے. رسولوں سے آپ تعلیم پائیں. جن چرچز کے اندر لوگ جاتے ہیں وہاں پر خدا کا کلام سنتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم خدا کے خادموں سے خدا کا کلام سیکھیں. دوسری بات، ہمیں خدا کے پاک روح سے خدا کا کلام سیکھنا. خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس کے متعلق سمجھاتا ہے. اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں اور خدا کے پاک روح سے مدد نہ مانگیں تو ہمیں خدا کا کلام سمجھ نہیں آئے گا. پہلی چیز، اگر ہم خدا کی حضوری میں رہتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا ہوگا، ہمیں خدا کے کلام کو سیکھنا ہوگا. اگر ہم خدا کے کلام کو نہیں پڑھیں گے، اگر ہم خدا کے کلام کو نہیں سیکھیں گے، خدا کے کلام کی عزت اپنے دل میں نہیں رکھیں گے، تو ہم خدا کی حضوری کا تجربہ نہیں کر پائیں گے. کیونکہ خدا کا کلام ہمارے ارد گرد ایسی ڈھال بنا دیتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری کو اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں. ہم خدا کے ہاتھ کو اپنے ارد گرد کام کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں. اس چیز کو ڈھال نہ بنائیں کہ آپ کلام نہیں پڑھ سکتے. آپ کسی بچے کو اپنے پاس بٹھا لیں، اس سے کلام سنیں، اس سے کہیں بیٹا مجھے پڑھ کے سناؤ. کسی بھی طریقے سے اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ چرچ جائیں، آپ خدا کا کلام سنیں، اس کلام کو یاد رکھیں. اور میں نے ان پڑھ لوگوں کے اندر تو سب سے بڑی جو صلاحیت دیکھی وہ یہ کہ انہیں بھولتا نہیں. پڑھا لکھا بندہ بھول جاتا ہے. میں گیت بھول جاتا ہوں کیونکہ میرے اندر یہ چیز ہے کہ یار میں پڑھ کے گا لاں. ان پڑھ آدمی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یار میں کتوں پڑھنا ہے. وہ 2 دفعہ سنتا ہے، تیسری دفعہ انہوں یاد ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسے ہمیشہ یاد ہی رہتا ہے کیونکہ وہ اس کو اپنے ذہن میں ہمیشہ یاد رکھتا ہے. تو ان پڑھ آدمی کے لیے جو بیسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تو خدا اسے ذہنی طور پر اتنا الرٹ کر دیتا ہے کہ وہ اس کو یاد رکھ سکتا ہے. تو پہلی چیز جس کی پریکٹس ہمیں کرنی ہے خدا کے کلام کو پڑھنے اور سننے اور سیکھنے کی. داؤد جو ہے وہ کہتا ہے کہ رات کے ہر پہر سے پہلے میری آنکھ کھل جاتی ہے تاکہ تیری شریعت کے اوپر، اتنا اسے عزیز ہے خدا کا کلام. راتوں کو اٹھ کے، ہم تو رات کو اٹھ کے پانی پیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پانی پی کے پھر سو جاتے ہیں، لیکن داؤد اسپیشل اٹھتا ہے گہری نیند میں اٹھ کے بائبل مقدس کو پکڑنا. تمہار ہوتے تھے اس وقت تو تمہاروں میں سے پڑھتا تھا، خدا کے کلام کے اوپر غور کرتا تھا، گہری نیند میں سے اٹھ جاتا تھا کہ وہ ٹائم ہو گیا ہے، میں نے خدا کا کلام پڑھنا ہے. ہر وقت کہتا میں خدا کو اپنے سامنے رکھتا ہوں. آج خدا ہمارے سامنے نہیں، بہت پیچھے، اتنا پیچھے کہ میں خدا نظر بھی نہیں آتا. کئی دفعہ آپ بس میں سفر کر رہے ہو، گجرات جا رہے ہو یا کسی بھی دوسرے شہر میں، تو سائن بورڈ پیچھے رہ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر نظر ہی کچھ نہیں آتا. ہم نے خدا کو ایسے پیچھے چھوڑ دیا ہے. لیکن داؤد کہتا میں سامنے رکھتا ہوں. میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگی میں خدا کو آنر کرنا ہوگا. اگر آپ خوشی پانا چاہتے ہیں، شادمانی پانا چاہتے ہیں، تسلی پانا چاہتے ہیں، اطمینان پانا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، اپنی لائف کے اندر خدا کو کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں خدا کی پروٹیکشن کے اندر آنا ہوگا. جب ہم خدا کے ٹینٹ کے نیچے آ جائیں گے، خداوند کے خیمے میں آ جائیں گے، خدا کی حضوری میں آ جائیں گے، تو خدا ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. ہاللیلویا.
पुराने आयत के अंदर लिखा है कि मेरी आंखें पूरे साल तुझ पर लगी रहेंगी अगर तू मेरे हुक्मों को मानेगा। वक्त पर मैं बरसाऊंगा, वक्त पर तेरे फसल होगी, तेरे मवेशी वक्त पर बढ़ेंगे, तेरी बढ़ती मुबारक होगी, हर एक चीज तेरी बहुतात के अंदर होगी अगर तू मेरे अहकामात को मानेगा। तो खुदा जिम्मेदारी लेता है कि मैं पूरे साल तेरी हिफाजत करूंगा। तो पहली बात जिसकी प्रैक्टिस हमने करनी है खुदा के कलाम को पढ़ने की। खुदा के कलाम को पढ़ें और जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है उसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करें, माने उसे, महज पढ़ने तक महदूद ना रहें। कई दफा हम खुदा के कलाम को ऐसे पढ़ते हैं, ये एक आसान सी मिसाल है, हम अपने दिमाग से खुदा का कलाम पढ़ते हैं, हम ऐसे नहीं पढ़ते कि बाइबल में से अल्फाज निकले और वो हमारे दिमाग पर हमारे दिल पर असरअंदाज हो गए। हम ऐसे बाइबल पढ़ते हैं जेड़ी गल साडी मतलब दी होए ओनू सी तसी आने, उसे जबूर नू पढ़ी आने, जबूर तई ही पढ़ी आ रहे हैं। 1000 दफा कहता मैं तई जबूर पढ़े, क्योंकि उसकी मतलब की बातें उसके अंदर, जहां पर खुदा उसको काटता है, जहां पर खुदा उसको काटता छाटता लिखा है मेरा बाप क्या है बागबान। तो खुदा जो है वो तो बागबान है, तो काटता है। बागबान का काम क्या है? वो शाखों को तराशता है, जो डाली फल आती है। मजे की बात ये जो फल आती है उसे ही काटता है। कहता खुदावंद मैं तो इन्नी दुआ करना, मैं तेरे नाल चलना, तू मैनू ही कटी आ रहे हैं। रीजन क्या है? खुदा उसे और बढ़ाना चाहता है। सूखी हुई शाखों को तो वैसे ही काट देता है, टोटली काट देता है, लेकिन जो फल आ रही होती हैं उनको तराशता है ताकि और फलदार हो जाएं और फैल जाएं। सो जब आप दुआ कर रहे हैं, जब आप कलाम पढ़ रहे हैं, जब आप खुदा की परस्तिश कर रहे हैं, जब खानदानी तौर पर खुदा के जोर झुके हैं, आपकी लाइफ पर टाइट हालात आ जाते हैं तो परेशान ना हो, ईमान में खड़े हो, क्योंकि खुदा आपको तराश रहा है, काट रहा है ताकि आप और फैल जाएं। तो कलाम को इस तरह से पढ़ें कि कलाम हमारी जिंदगी पर असर अंदाज हो, ना कि हम अपनी मतलब की आयतें पढ़ें। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो कुछ मखसूस किताबों में से बस पढ़ते हैं, कहता है मैंने बड़ी पसंद है जबूर, बड़े पसंद है। जबूरों में बस अपनी बिपता ही, वो ज्यादातर जबूरों के अंदर अपनी परेशानी बता रहा होता खुदा को। कहता है इंज लगता जिवें मेरी ही कहानी। तो मैं कहा जी अगे भी तो पढ़ो जड़ियां यसू ने गल्लां कीतियां, उनकी तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि यसू उसमें कहता है कि अपनी सलीब उठा। तो अपनी सलीब उठाना तो लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है। सब्र कर, बर्दाश्त कर, अपने भाई को माफ कर, दुश्मन को दुआ दे। ये नए अहद की तालीम है जो रसूलों ने भी दी है। ये होता नहीं, कहता मैं तो बस जबूर ही पढ़ना, मेरे बड़े पसंदीदा ने। उसमें वो कहता दुश्मन को हलाक कर, मेरे खिलाफ जो खड़े हुए उनको परगंदा कर दे। ये सही तालीम है, लेकिन नए अहदनामे की तालीम जो है वो बराह रास्त हमारी जिंदगी पर अप्लाई होती है। ये नहीं कि जबूर हमारे लिए जरूरी नहीं है, जबूर भी जरूरी है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात, रसूलों की तालीमात, जो नए अहद, जो फजल की तालीम है, उसको अपनी जिंदगी में लें। खुदा जो बातें हमें करने के लिए कहता है वो तो हम करते नहीं। जो बातें कलाम में हमें अपनी फायदे की नजर आती हैं वो पढ़ लेते हैं। कहता यीशु ने भी तो मैं बनाई सी, ये अपने फायदे की बात। पीनी जो है तो कहता जी यीशु ने भी तो मैं बनाई सी जी, तेरे च केड़ी बुराई है? असी बस एनी कि पी लेने, अगर नशा नहीं होता सन थोड़ी जी पीने हैं बस। मेरे जीजो प्रैक्टिस करें खुदा के कलाम को सीखने के लिए। हर रोज जब आप खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए वक्त निकालेंगे, हो सकता है कि हम में से बहुत से ऐसे हों जो बिल्कुल कलाम ना पढ़ते, लेकिन जब आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा खुदा का कलाम पढ़ने के लिए निकालेंगे, इसका मतलब है कि आप उन 2 घंटे के अंदर उन गैर जरूरी बातों को छोड़ेंगे जो 2 घंटे आप पिछले दिनों में करते रहे। समझ रहे हैं मेरी बात? हो सकता है आप 2 घंटे टीवी देख रहे हो, मुसलसल एमी मैच लगा, टेस्ट मैच लगा है, और टिप टिप लगे, गेंदा छाड़ रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, बॉलर भाग के आया, उसने बॉल की, बैट्समैन ने छाड़ दी, कीपर ने फाड़ ली, हम उसको देख रहे हैं, मशहूरियां आ रही वो भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। शाम हो गई, एंड द मैच ड्रा हो गया। 5 दिन देखा, हासिल कलाम कुछ नहीं है। कह रहा जी ड्यूटी तो छुट्टियां लाइया हुई सन, मैं मैच ही फिर वेखदा रही। ओ भाई 5 दिन टेस्ट मैच आपने देखा, ये तो इजी है, जियो पे खबरें लगाओ, 5 मिनट में वो आपको बता देंगे कौन जीतया, किन्ने कितना स्कोर किया, दैट्स ऑल, 2 मिनट में फारिग हो। लेकिन हम 5 दिन लगाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई करने के लिए है ही नहीं कोई काम। लेकिन ईमानदारों के पास करने के लिए ये काम होना चाहिए। हालेलुया, ये सबसे बड़ा काम है मेरे लिए और आपके लिए। खुदा की बातों को सीखना, खुदा की बातों को पढ़ना, खुदा क्या चाहता है, खुदा मुझे क्या रहनुमाई देना चाहता है, खुदा मुझसे क्या तवक्को करता है। तो रसूलों से तालीम पाएं। अगर आप खुदा की हुजूरी में रहना चाहते हैं तो पहली बात जिसकी प्रैक्टिस करनी होगी, रसूलों से तालीम पाएं। पाक रूह से कहें कि खुदावंद तू मुझे अपने पाक रूह के वसीला से अपना कलाम सिखा, मैं तेरा कलाम पढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल साफ नीयत से खुदा के पास आए कि खुदावंद अगर कोई ऐसी बात जो मेरे अंदर है और तू उसे काटना चाहता है तो मुझ पर जाहिर कर, मैं उसे तेरे सामने लेकर आऊंगा। खुदा से फजल मांगेंगे, खुदावंद मैं इतने सालों से ये गलत काम करता रहा हूं, मुझसे नहीं छूट रहा, तू मेरी मदद कर। खुदा मदद कर देगा। आमीन। दूसरी बात लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने। आपने रफाकत रखनी किसके साथ? यारों दोस्तों के साथ, खादमों के साथ, ईमानदारों के साथ जो यीशु के लहू से धुले हैं। अपनी
रफाकत को प्योर बनाएं। आपकी रफाकत ऐसी हो जिसमें आपके रूहानी मसाइल हल हों। ऐसी रफाकतें बनाएं अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ आप खड़े होते हैं। पहली बात तो चुनाव करें कि आपने किन दोस्तों को रखना है, किन दोस्तों को नहीं रखना। जब मैं ऑफिस में काम करता था, स्कूल में था, जब मैं स्कूल में था तो जब मैं नौकरी पे लग गया तो मैंने अपने स्कूल के दोस्तों को खैरबाद कहा, क्योंकि वो मेरे मतलब के नहीं थे। मेरे मतलब के इसलिए नहीं थे क्योंकि वो खुदा के जुए के नीचे नहीं थे। ना हमवार जुआ जो है ये रसूलों की तालीम है, तो उसने कहा कि उसके अंदर ना जुतो। तो हम ना हमवार जुआ जो है मतलब ये है कि एक इंज करके एक जगह ते घोड़ा तो दूसरे पासे बकरी चली जा रही है, तो कैसा अनबैलेंस होगा जुआ। वो जो लकड़ी का फ्रेम होता है उसको जुआ कहते हैं। तो एक तरफ तो घोड़ा भाग रहा हो, दूसरी तरफ नीचे बकरी बंधी हो, तो किस तरह का होएगा जुआ। देख लें क्या होगा, वो बोझ उठाएगा, वो उठा ही नहीं सकता। अगर दोनों तरफ घोड़े लगे दोवां दे बराबर दा भार आएगा, भागे जाएंगे ठक 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 ठक। ये रफाकत है। ऐसा बंदा ढूंढे जो आपके फ्रेम में फिट हो जाए। कहता जी वो लड़की बहुत खूबसूरत है, मैं तो उसी से शादी करूंगा, जबकि वो फ्रेम में फिट नहीं हो रही। कहना मैं करनी ओदे नाल ले। अच्छा कर ले भाई, जब शादी हो जाती है उस वक्त तो सब कुछ अच्छा लगता है, बाद में फ्रेम फिट नहीं हो रहा। तो बेटियों वाले कहते हैं जी हमने अमीर फैमिली के अंदर करना है जाके। एक बहन से मेरी बात हो रही थी, कह रही भाई मैं तो खुदा से कह रही हूं यहां भी गुर्बत, तो आगे जहां शादी होगी वहां भी गुर्बत, मैं अमीर घर में शादी करूंगी। तो मैं कहा जो तेरे मां प्यो ना बड़न देन घर क्या गरीब जो कितों आ गए ने, चलो कड्डो इन्होंने बाहर, फिर तू रोएंगी मेरे मां प्यो नहीं मिलन देन। खुदा अमीर भी फराम कर सकता है, ये नहीं कि खुदा अमीर नहीं फराम कर सकता, लेकिन अगर हम खुद ये जहन बना लें कि हमने ढूंढना ही अमीर है तो नाकाम हो जाएंगे। ना हमारे जुओं में आज फैमिली जुटी हुई हैं, अपने आप को अमीर जिता के अपनी से ज्यादा अमीर फैमिली के अंदर रिश्ता कर लेते हैं। हम सायों से फर्नीचर ले लेते हैं, कहता तुसी बाजी जरा वो वेखण आ रहे हैं, तुसी जरा फर्नीचर दिखा दो उनको, फर्नीचर ले हौले हौले हौले, सोफे ला ले, बेड लगा लिए, उनकी चीजें लगा ली, और कोशिश करते हैं किसी तरीके से रिश्ते हो जाए अपनी सी बड़ी फैमिलियों में, लेकिन बाद में नुकसान उठाते हैं। तो रफाकत जो है उसमें आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। हम अक्सर बताते हैं कि वो शख्स जो मफलूज था उसको कौन उठा के लाए थे जी यीशु के पास? उसके दोस्त लेके आए थे। इसका मतलब है उसकी यारी दोस्ती ठीक लोगों के साथ। उसके बाबों के पास भी लेके जा सकते थे, सियाणों के पास भी लेके जा सकते थे, आधे को फूक मरवा दो, मुंह पे बोकर मारेगा तो ठीक हो जाएंगे, वहां भी लेके जा सकते थे, लेकिन वहां नहीं गए, यीशु के पास लेकर आए। और फिर हिम्मत भी नहीं हारी उन्होंने ऊपर से छत खोल दी, नीचे से तो रश बहुत था, लोग उनको गुजरने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा यार हमारे अपने बीमार हैं, हम तो सुबह से आए हुए हैं, तुम्हें कैसे जगह दे दें। वो पता नहीं कहां से पीछे से चढ़े, दूसरे घरों से होते हुए उन्होंने उसकी छत को खोल दिया और अपने बीमार को ऊपर से नीचे लटका दी, रस्सी से बांध, चारपाई उसके नीचे। तो लिखा है यीशु बात कर रहा था लोगों से, यीशु ने उनकी बात का बुरा नहीं मनाया, तो यीशु ने उसको ठीक कर दिया। वो शख्स घर में बीमार पड़ा था, ईमान चाहे उसके अंदर था, लेकिन अगर उसकी रिफाकत अच्छे लोगों के साथ ना होती तो ना कहते छाड़ी यार यीशु ने तेन की देना, कोई गल नहीं, प्यार है, तेल माल रहे हैं ना तेन, रोज मैं तेरी चंपी करना है, सारी तेरी बॉडी ते तेल चास देता है मैं, डेली करना, देखी तू ठीक हो जाए। अगर गैर ईमानदार उसके आगे पीछे होते, लेकिन ईमानदार लोगों का हजूम उसके इर्द गिर्द था, तो वो उसको मौजे की तरफ ले आए। सिलेक्ट करें कि आपने किसके साथ रफाकत करनी है, आपने किन दोस्तों के साथ उठना बैठना है, आपने किन लोगों के साथ अपनी रफाकत बनानी है। जिस तरह खुदा का पाकरू हमें कलाम सिखाता है, उसी तरह खुदा का पाकरू हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है। तो रफाकत के लिए चूज करें पाकरू को, ईमानदार लोगों को जो खुदा के साथ चलते हैं, और एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे को मजबूत करें कि भाई तुसी पहले दिनों च बड़ियां कलाम दियां गल्लां करदे सो, अजकल तुसी बिल्कुल नहीं कलाम दियां गल्लां कर रहे। वो अलर्ट हो जाएगा, कहेगा यार मैनू तुहाडियां गल्लां तो बड़ी बरकत मिलती सी, लेकिन आजकल तुसी करदे ही नहीं। वो फौरन अलर्ट हो जाएगा कि यार अगर मेरी बातों से बरकत मिलती थी तो इसका मतलब है कि अब मैं कलाम की बातें नहीं करता, और मेरी इन बातों को ना करने की वजह से बंदा अपनी बरकत खो रहा है। वो अलर्ट हो जाएगा। ये रफाकत का मतलब है। तो खुदा के पाकरू से रफाकत रखें, उसकी प्रेजेंस में रहें, आप देखेंगे आप शादमानी को पाएंगे। और आगे लिखा रोटी तोड़ने, खुदा का कलाम जो है दर हकीकत ये हमें सलीब की पहचान देता है। रोटी तोड़ने का मकसद खाली यही नहीं है कि हम आपको रोटी दें छोटा सा पीस और आप उसको खा लें और वो शरबत पी लें शीरा और उसको पी के बैठ जाएं, बस यहां तक। इसका मतलब बड़ा गहरा है। इसका मतलब बराह रास्त सलीब के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी और आपकी निजात कहां से आई है? यीशु मसीह ने मुझे और आपको निजात देने के लिए सलीब पर जान दी है। तो जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, पौलुस रसूल करंथियों के खत के अंदर तालीम देता है, तिमोथियस को भी तालीम देता है, तिमोथियस के खत के अंदर उसको ये कहता है कि तू उस खाका को याद रख। किस खाके को? सलीब के उस पैगाम को ना भूल जाना। सलीब का पैगाम जो है वो मेरी और आपकी निजात का बाइस है। तो जब हम सलीब के पास आते हैं, सलीब के मंजर को याद रखते हैं, तो हम खुदा की हुजूरी में रहते हैं। प्रैक्टिस करें आपकी आंखों से। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि अपने कामिल करने वाले
यीशु को तकते रहो। तो क्राइस्ट जो मसलूब है वो किसके लिए है? मेरे लिए और आपके लिए। जितना ज्यादा हम खुदावंद यीशु मसीह के उस मसलूब मंजर को अपनी आंखों के सामने ताजा रखेंगे, हम खुदा की हुजूरी के अंदर रहेंगे, क्योंकि यही वो मकाम है जहां पर यीशु ने मुझे और बाप को मिला दिया है, मुझे और आपको बाप से मिला दिया है। मरकज फिदा साहब का जो खूबसूरत गीत है, इंसान बारगाहे इलाही से था गिरा, अब फिर मकाम पाक में लाती सलीब है। तो सलीब जो है वो पाक मकाम में हमें वापस ले आती है। गुनाह की वजह से हम निकाल दिए गए थे, बागे अदन से, खुदा की हुजूरी से निकाल दिए गए थे, लेकिन सलीब हमें खुदा की हुजूरी में वापस ले आई है। तो क्या क्या काम करने हैं? खुदा का कलाम पढ़ना है, सीखना है, खुदा के कलाम को अप्लाई करना अपनी जिंदगी में, रफाकत रखनी है, और आपने रोटी तोड़ने की इस रस्म में शरीक होना है, और खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत को, उसके इस कफारे को हमेशा अपने जहनों में याद रखना है, ताजा रखना है। आपको पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी कीमत देकर छुड़ाए गए। आपको अपनी कीमत का अंदाजा हो जाएगा। देख क्या रंगे वफा होता है, देख क्या रंगे वफा होता है, मतलब मोहब्बत का रंग कैसा होता है, खुद ही मसलूब खुदा होता है। खुदा ने अपने आप के लिए एक जिस्म इख्तियार किया और जिस्म में आ गया, और जिस्म में आकर उसने मेरा और आपका कफारा दिया। मींस एक बेशकीमत खून मेरे लिए और आपके लिए बहाया गया। उस कीमत चुकाने की वजह से, उस खून की वजह से मैं और आप बेशकीमत बन गए। तो मेरी और आपकी कितनी कीमत है कि हम साबुन से नहीं धोए गए, सोने का पानी हमारे पे नहीं चढ़ाया गया। बेऐब बर्रे का खून मुझे और आपको धोता और पाक करता है। हालेलुया। जब आप सलीब को देखेंगे और एक तरफ शराब की बोतल होगी, आपको अपनी कीमत नजर आ जाएगी। आप कहेंगे नहीं यार मैं तो बहुत कीमती हूं, हो गई बोतल कंध से बची जाती, फेंक देंगे आप। उस बंदे को भी आप कहेंगे चला जाता हूं बोतल लेके, मुझे मेरी कीमत का पता चल गया है। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के खून से खरीदा गया। जिस किसी को अपनी कीमत का अंदाजा है, आपको पता है जो अमीर लोग हो जाते हैं थोड़े से, रेडी से फिर छोले नहीं खाते, खाते हैं छोले रेडी से? बताए मुझे कोई बंदा है जो लेमोजीन च उतरे चिकड़ छोले का, वो कहता भाई मेरा लेवल ही और है, पीसी जाऊंगा, अब आ रही जाऊंगा। वो तो जाएगा नहीं चिकड़ छोले खाने के लिए, क्योंकि उसको अपनी रिस्पेक्ट का पता है, उसको अपने लेवल का पता है कि मेरा लेवल क्या है। मेरा लेवल अब चिकड़ छोले खाने का नहीं है। चिकड़ छोले होते मजेदार हैं, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए। वो बंदा इसलिए लेमोजीन से नहीं उतरेगा क्योंकि उसे पता कि यार ये मेरी इंसल्ट है, ये बंदा इतनी बड़ी गाड़ी में आया थे और 10 जी बिचो ड्राइवर ही निकले। वो अपने आप को जिताएगा कि मैं बड़ा आदमी हूं, वो जिताएगा। लेकिन आप बड़े आदमी हैं, आप बड़े लोग हैं। वो तो जिताने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन हम हैं क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए खून बहाया है, आपके लिए खून बहाया है, हमारे लिए खून बहाया है। हम वीआईपी लोग हैं। तो हम कैसे सिगरेट पी लेते हैं? ये तो आम काम है लोगों के, जो दुनियादार लोग हैं, जिन्होंने आसमान की बादशाही में नहीं जाना। नशाबाज लोग, कलाम में लिखा नशाबाज खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा। गालियां निकालने वाला खुदा की बादशाही में उसने नहीं जाना। तो जब आप गाली निकालने लगे, फौरन अपनी कदरों कीमत को देखें। जब आप शरीफ के मंजर को देखेंगे, आप कहेंगे नहीं यार मेरा तो लिंक ही बहुत ऊंचा है, मैं ये काम क्यों करूं। मैं अक्सर ये बात बताता हूं, हमारे प्लाजे में एक दफा लड़ाई हो गई। तो एक बहुत अमीर आदमी था, दूसरी पार्टी भी बड़ी ठीक ठाक थी, उनकी लड़ाई हो गई आपस में। तो एक बंदे ने बहुत गालियां निकाली उसे, वो चुप करके खड़ा रहा, दूसरा। तो वहां पर एक और साहब थे, कहने लगा तैयब साहब वो है ना बुरा भला कह रहा, तुसी भी उन्होंने कुछ कहो। उन्हें कहा यार वो तो चिकड़ च खलोता है, मैं भी खलो जाऊं। उसने तो अपने कपड़े भर ही लिए हैं, तो मैं भी उसके साथ खड़ा हो जाऊं जाके, ताकि मेरे भी कपड़े लिपट जाएं। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाना होता। वो खड़ा रहा, चुप करके खड़ा रहा, और सब लोग हैरान हुए यार बड़ी गल है। वो खुद अपनी नजरों में शर्मिंदा हो गया कि यार मैंने तो इतनी गंदी गाली निकाली, इसने जवाब ही नहीं दिया। उल्टा मुझे ये कह के गया कि चलो जी कोई गल नहीं सर, वक्त आएगा तो तुम समझ आ जाएगी। वो ये कह के उतर गया और वो शर्मिंदा होकर अपने ऑफिस में चला गया। आज हम फौरन शामिल हो जाते हैं उन कामों में जो हमारे नहीं है। हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे उन कामों को छोड़ने की जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। दाऊद कहता मैं हर रोज खुदा को सामने रखता हूं, मतलब हर रोज अपने आप को देखता हूं। पौलुस रसूल कहता है मैं अपने आप को मुक्कों से मारता हूं, ये नहीं कि हवा में मुक्के मारता हूं। वो कहता है मैं अपने आप को चेक करता हूं, कहीं मेरी लाइफ के अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं जो खुदा के कलाम के खिलाफ है। तो फिर वो कहता है मैं उसे सलीब पर मसलूब कर देता हूं। हर एक ख्याल जो सलीब के खिलाफ, जो खुदा के कलाम के खिलाफ मेरे अंदर उठता है, मेरे बातन में सर उठाता है, मैं उसे सलीब पर खींच देता हूं, मसलूब कर देता हूं, क्योंकि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। मेरे जीजो, दाऊद कहता है तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। जब आप कलाम पढ़ेंगे, खुदा के कलाम से दिल लगाएंगे, खुदा के वादे आपको शादमान कर देंगे। खुदा की बातें आपको ऐसी लगेंगी
दाऊद ही कहता है कि मैंने लूट के माल से ज्यादा तेरे कलाम को अपने अंदर जखीरा किया है। मैं कहता हूं कि अगर दाऊद के साथ दो बंदे और खड़े कर दें, एक तरफ सोना बिखेर दिया जाए और एक तरफ कलाम, तो दाऊद जो है, दाऊद कहता मैं कलाम नू जफा पाना, कहता सोने को मैं रिजेक्ट कर देता हूं, पीछे करो सोना, ये मेरे काम का नहीं है, मेरे काम की जो चीज है वो खुदा का कलाम है। तो कहता लूट के माल से ज्यादा मैंने तेरे कलाम को अपने अंदर जखीरा किया है। जो लोग खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं शादमान रहते हैं, खुश रहते हैं, खुदावंद उनकी मदद करता है। मुसीबत अगर उन पर आती है तो उनका चेहरा उतर नहीं जाता, बल्कि वो खुदा के हाथ को देखते हैं कि खुदा अब इस मुसीबत में से मुझे छुड़ाएगा कैसे। खुदा पर निगाह रहती है उनकी, और खुदा के पाकरू के साथ चलते हैं, रफाकत रखते हैं ईमानदारों के साथ। रोटी तोड़ने की रस्म में जब शामिल होते हैं तो याद रखते हैं कि खुदावंद ने मेरे लिए जान दी। और आखिरी बात, दुआ। खुदा की हुजूरी में रहने के लिए मुझे और आपको दुआ करनी पड़ेगी। तो हमारा दुआया जो माहौल है वो बहुत ही कमजोर है, हम बहुत माठे हैं दुआ करने में। हमारी दुआया जिंदगी ऐसी है जैसे किसी बंदे को ऑक्सीजन लगा हो। आपने कभी ऐसे बंदे को देखा है जिसको ऑक्सीजन लगा हो, मर रहा हो, आर्टिफिशियल सांस ले रहा हो? हमारी बस दुआ ऐसी है, हल्की हल्की दुआ करते हैं 1-2 मिनट के लिए, जय यीशु दी, 2-4 कलमे कई लोगों ने बना लिए अपने लिए, वो मार के नारा निकल जाते हैं, सारा दिन के लिए वही कहना काफी, यीशु का कहना ना ही काफी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये शैतान का एक ऐसा झूठ है जिसने बनी नो इंसान से बोला है, और बहुत से लोगों ने इसका यकीन कर लिया है। खुदा चाहता है कि हम उसके लिए वक्त निकालें, बल्कि सारा वक्त है ही उसका। उसके लिए वक्त निकालना नहीं है, वो तो हमारे वक्त का मालिक है, वो हमारी जिंदगियों का मालिक है। जब हमने अपनी जिंदगी उससे दे दी तो फिर बाकी पीछे क्या रह गया? हम दुआ क्यों नहीं करते? इसका मतलब हमने उसे जिंदगी नहीं दी, शैतान ने हमें धोखा दे दिया कि तुझे अपनी जिंदगी खुदा ने देती। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर दुआ ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब है जिंदगी तो दी नहीं खुदा। आखिरी बात करूंगा, इसे खत्म करूंगा। आपने कभी बॉक्सिंग का मुकाबला देखा? कितने लोगों ने बॉक्सिंग का मुकाबला देखा? बॉक्सिंग में जो बेल्ट की बॉक्सिंग होती है उसमें आपने देखा राउंड्स होते हैं, उसमें दोनों मध्य मुकाबले आ जाते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, और चौथे, पांचवें, छठे, सातवें राउंड में ऐसे हो जाता है कि दोनों गिरने वाले हो जाते हैं, आंखें सूज जाती हैं, जबड़े फूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें मार पड़ पड़ के उनके बुरे हाल हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि दुआ ऐसी हालत है, जब आप बिल्कुल थक जाते हैं और वो बॉक्सर बिल्कुल गिरने वाला हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, तो जब वो बेंच पे जाके बैठ जाता है तो उसका कोच पीछे से आता है, उसके कान में कुछ कहता है, गीला करके तौलिया ठंडे पानी का उसके सर के ऊपर रखता है, उसकी आंखों पे रखता है, उसको फ्रेश करता है। जब आप दुआ में बैठते हैं, दुनिया की परेशानियां आपके ऊपर होती हैं, आप गिरने वाले बॉक्सर की तरह होते हैं, लेकिन पाक रूह आता है पीछे से, और आपने देखा होगा कि वो उसको थोड़ी देर उसके कान में कुछ कहता है, वो कहता है तू लड़ सकता है, तेरे अंदर हिम्मत है। थोड़ी देर के बाद उठ के खड़ा हो जाता है, कहता मारांगा मैं। दुआ में जब आप आते हैं तो खुदा आपको उठाता है, खुदा आपको उभारता है कि तू हार नहीं गया, मैं तेरे साथ। हालेलुया। और फिर वो आगे बढ़ता है, वो जोर पाता है, वो तरक्की पाता है, और वो उस दुश्मन को ज़ेर कर देता है। दाऊद की दुआया जिंदगी बड़ी स्ट्रांग थी। साउल कहने लगा मुकाबला बहुत सख्त है, उसने कहा मैं लड़ लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो कोच की बात सुनता रहता था, कोच कहता था तू लड़ सकना, और खुदा की हुजूरी उसके साथ थी। एक ही पत्थर जाती जूलियत को तमाम कर गया, क्योंकि वो पत्थर खुदा की हुजूरी में लिपटा हुआ पत्थर था, खुदा की कुव्वत से भरा हुआ था, और एक ही पत्थर जाती जूलियत को पड़ा, उधर ही गिर गया। 40 दिन से इसराइलियों को परेशान कर रहा था, लेकिन एक छोटे से बच्चे का एक वार बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजह क्या है? क्योंकि वो बच्चा खुदा की हुजूरी में रहने का आदी था, माहिर था, और छोटा सा बच्चा था 17 साल का। लिखा है वो जंगी सूरमा था। जब यसी के बेटे का तारुफ कराया गया साउल के महल में, कितना खूबसूरत तारुफ था, बोलने में साहिब तमीज, जंगी सूरमा है, बजाने में उस्ताद है। तो ज़ुबून इस कहता है कि मेरे खुदा मेरे हाथों को कुव्वत देता है, और मेरे हाथ जो है कमान को, वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है। मेरे जीजो, खुदा आपसे कलाम कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बरकत पाएं तो खुदा की हुजूरी में रहने की मशक करें, प्रैक्टिस करें। हम बहुत सी चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम खुदा की हुजूरी में रहने की प्रैक्टिस नहीं करते। हम चूक जाते हैं ये काम करने में, जिसकी वजह से हम बरकत नहीं पा पाते। हमारे अंदर खुशी नहीं आती, शादमानी नहीं आती। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन तो भी हम खुश नहीं। वजह यह है कि हम खुदा की हुजूरी में नहीं रहते। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, और अगर खुदा हमारे दिलों में बस रहा होगा, हम खुश होंगे। हम इधर उधर खुशी की तलाश में नहीं भटकते फिरेंगे, क्योंकि खुशी हमारे अंदर है। खुदा खुशी को हमारे अंदर भरना चाहता है। लिखा है आबे हयात की नदियां जारी कर देगा हमारे अंदर से। आबे हयात की नदियां क्या हैं? ये खुशी का पैगाम है,
یہ رہائی کا پیغام ہے، یہ نجات کا پیغام ہے. ہم لوگوں کو بتائیں گے مجھے رہائی مل گئی ہے. ہاللیلویا. آؤ مجھے ایک ایسا شخص مل گیا جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے ہیں. تو لوگ جوک در جوک یسوع کو دیکھنے کے لیے آ گئے، کیونکہ اس عورت کی گواہی بڑی سالڈ. اس نے اس گرم جوشی کے ساتھ جا کر اس گاؤں کے اندر لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ آؤ مجھے سخار کے کنویں پر ایک ایسا شخص ملا ہے جس نے مجھے سارے ہی کام بتا دیے اور خرسطس وہی ہے. وہ جان گئی تھی. میرے عزیزو، خدا کے کلام کو پڑھیں اس سال میں. اس طرح سے پڑھیں کہ خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگیوں پر اثر انداز ہو. اس طرح سے خدا کے پاک روح کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں کہ کوئی گیپ بیچ میں نہ آئے. غیر ضروری لوگوں کو چھوڑ دیں جو آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا اگر وہ دوست آپ کا بڑا عزیز ہے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ یار تو مینوں ملتا کیوں نہیں. انہوں کو یار مینوں یسوع مل گیا، اگر تو میرے نہ چلنا تے آ جا، تم پھر اسی دونوں اکٹھے رہ سکنے. کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ سائیکل کے اندر ایک ٹائر جو ہے وہ پجارو کا اور دوسرا سائیکل کا ہی لگا، سائیکل انجن چلے گی. اس لیے سلیکٹو ہوں کون سے کام ہم نے کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے. چھوڑ دیں ان کاموں کو جو غیر ضروری ہیں اور جو ضروری ہیں ان کو پکڑ لیں. داؤد کہتا میں خدا کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہوں، فرنٹ پہ. اٹھتے بیٹھتے اس کو ہر کام میں خدا ہی پہلے نظر آتا ہے. چیک کرتا ہے، اس نے کلیہ بنا لیا، کہتا ہے کام خدا نو پسند ہے، نہیں چھڈو پر. خدا کو سامنے رکھا ہوا ہے، اسی لیے وہ مات نہیں کھاتا. داؤد کی کہانیوں پر آج بھی ہم سوچتے ہیں، اور جب بھی سوچتے ہیں ہمارا دل جوش سے بھر جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے خدا کے ساتھ وقت گزارا ہے. خدا کے ساتھ وقت گزارنے والے لوگ عام نہیں ہوتے، خاص ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی اس خاص دعوت میں انویٹیشن دیتا ہوں میں. آپ اس خاص انویٹیشن کو قبول کیجئے. عام نہ رہیے، خاص بن جائیں. خدا آپ کو برکت دے.